آج جو بسز ہم ڈالرز دے کر امپورٹ کر رہے ہیں، اور ڈالر کے ریٹس بھی آپ کو پتا ہے کیا ریٹس ہوتے جا رہے ہیں، اگر یہی بسز یہاں پہ بنے تو ہمارا ذرائع مبادلہ بچے گا. جب یہاں مینوفیکچرنگ ان بسز کی ہوگی تو یہیں پہ آپ کے لوگوں کو روزگار ملے گا، ہمارے بھائیوں بہنوں کو روزگار ملے گا. یہ آپ کو سوچ رکھنی چاہیے، یہ ہمیں سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم انڈسٹریلائزیشن کو کس طرح بڑھائیں، کس طرح انڈسٹریز کو یہ موقع دیں، انویسٹرز کو، انٹرنیشنل انویسٹرز کو موقع دیں، آئیں ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں. اور میری ہر میٹنگ میں میرا پہلا ایجنڈا یہ ہوتا ہے، کسی بھی فورن کمپنی میں میٹنگ کو پہلے کہتا ہوں جی کہ میں آپ کو گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے یہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جی گورنمنٹ آپ کو فری آف کاسٹ زمین دے گی. جو بھی فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں آپ کو ٹیکسز کی مد میں، امپورٹ کی مد میں جو آپ سے فیورز چاہیں گے وہ ہم آپ کو لے کے دیں گے، کہ آپ یہاں پہ پلانٹ لگائیں، آپ یہاں پہ مینوفیکچرنگ کریں. ہمیں ہر جگہ پہ جتنے بھی سیکٹرز ہیں پاکستان میں، جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز، وہاں پہ ہمیں فورن انویسٹرز کو بلانا پڑے گا، کیونکہ جو اس وقت آپ کی اکنامک کنڈیشن ہے وہ واقعی بہت زیادہ پریشر میں ہے. اور اس میں جب تک ہم لوگ اس طرح کے مضبوط ایک بڑے فراخ دلی والے فیصلے نہیں کریں گے، اپنی پرانی ٹریڈیشن سے ہٹ کر فیصلے نہیں کریں گے، تو ہماری ترقی جو ہے مشکل ہے. کیونکہ خدا نہ خواستہ کل کو اگر کوئی بھی فیکٹری بند ہوتی ہے تو کسی کو اندازہ ہے کہ ایک فیکٹری بند ہونے سے کتنے ہزار خاندان جو ہیں وہ بھوکے ہو جاتے ہیں، ان کی تنخواہیں بند ہو جاتی ہیں، ان لوگوں کے لیے کتنے مسائل ہیں. تو مزید انڈسٹری لگے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کی مد میں انڈسٹریز ہو، چاہے وہ گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ میں انڈسٹریز ہو، چاہے وہ ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کے مد میں انڈسٹریز لگیں، تاکہ لوگوں کو آپ آگے چل کے لے چل سکتے ہیں. تو یہی ہماری پرائورٹی ہونی چاہیے. میں نے ٹرانسپورٹ میں کہا میگا پروجیکٹس، یقیناً میگا پروجیکٹس، اربوں روپے کے میگا پروجیکٹس کراچی کے لیے اور سندھ کے دیگر اضلاع کے لیے رکھے گئے ہیں. انشاءاللہ اور بھی ہوں گے. ہمیں آپ نے ساتھ، ہم نے سب نے مل کر ساتھ جو ہے اپنے ان ساری چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں ہم تمام چیزوں کی حفاظت کریں. ان بسز کی حفاظت کریں، ان بسز میں لگے ہوئے کیمرہ سسٹم، ان کی حفاظت کریں. ہم یہ نہ کریں کہ اپنی چیزوں کو نقصان پہنچائیں. جیسے انفارچونیٹلی ہماری یہی بسیں جس کو ہر کوئی، ان بسیں سے مجھے یہ خوشی ہے کہ ہماری پبلک بھی ان بسیں سے پیار کرتی ہے، لیکن چند شر پسندوں نے ان بسز کو بھی آگ لگائی. ہماری 3 بسز جو ہیں ان کے شیشے توڑے گئے، وہ اس وقت فنکشنل نہیں ہے، اور میں ایک بس کو بالکل آگ لگا دی گئی. اور اس مد میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سب سے اہم چیز تھی کہ چند ہمارے ڈرائیور حضرات اور ہمارے پیپلز بس سروس کے اسٹاف نے، NRTC کے اسٹاف نے بڑی ہمت سے کام لیا، ان بسز کو بچایا، جلنے سے بچایا. ورنہ یہ ایک بس نہیں جلانے کے موڈ میں تھے. جو بھی ان کا اس دن پلان تھا، ان کا پلان یہ تھا کہ جتنی بس سروس چل رہی ہیں سب کو چلائیں. لیکن اس وقت ڈرائیورز نے، NRTC کے عملے نے، کیونکہ آپریشن NRTC کے پاس تھا، بڑی ہمت کا، سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ ان دہشت گردوں نے جن کی مرضی تھی کہ یہ پوری ٹرانسپورٹ سسٹم کو آگ لگائیں، اسے بچایا جا سکا. نقصان ہوا ہے، افسوس ہوتا ہے اس نقصان کا کہ اپنی ہی چیزوں کو، اپنی سہولیتوں کو آگ لگا کے ہم کیا میسج دے رہے ہیں. چاہے ہم یہاں پہ کر رہے ہوں، چاہے جو پنجاب میں جناح ہاؤس کو، کمانڈر ہاؤس کو کیا گیا، یا GHQ میں کوشش کی، یا پورے پاکستان میں ایمبولینس سروس، ED کی ایمبولینس نے آپ کو کیا ناراضگی ہے کہ آپ نے اس کو جلانے کی کوشش کی. آپ نے ملک میں جو افراتفری پیدا کی، جو آپ نے چیزوں کو نقصان پہنچایا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ چیزوں کو نقصان پہنچایا گیا. اس کا کیا قصور تھا ان چیزوں کا؟ اس شرف پسندی سے ہمیں نکلنا ہوگا. جو لوگ آپ کے ملک میں آپ کی املاک کے، سرکاری املاک ہو یا نجی املاک ہو، نقصان پہنچانے کی آپ کو تنقید کرتے ہیں، جو آپ کو اس طریقے کی میسج دیتے ہیں، وہ آپ کے، ہمارے ملک کے، ہماری عوام کے دوست نہیں، وہ ان کے دشمن ہیں. یہ مشورہ کوئی دشمن ہی دے سکتا ہے کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے اپنے ملک کے ساتھ. ورنہ یہی پولیٹیکل پارٹیز، یہی PTI لندن میں بھی ہے، انہوں نے اپنے یونٹ امریکہ میں بھی کھولے ہوئے ہیں، وہاں تو یہ حرکتیں کر کے دکھائیں. کیا ان کی اتنی ہمت ہوگی کہ اس طرح کی حرکتیں یہ امریکہ میں کریں اور لندن میں کریں؟ وہاں بھی املاک چلے، وہاں کر کے دکھائیں.
अपने ही मुल्क में जहां इनको ये खौफ नहीं था कि जी यहाँ पे कानून भी कभी हरकत में आ सकता है, क्योंकि कानून हमारे हाथ की चीज़ है जब हम जिस तरीके से कानून को इस्तेमाल करना चाहें। इन्होंने कानून का गलत इस्तेमाल किया और आपने देखा कि इन्होंने इन नौजवानों को, अभी देखें इनकी उम्र देखें लोगों की, नौजवानों को जिनके हाथ में कलम होने चाहिए, जिनके हाथ में ये होना चाहिए कि वो किताबें होनी चाहिए, जिनके हाथ में लैपटॉप्स होने चाहिए, उनके हाथ में डंडे, पत्थर, पेट्रोल बम दिए गए कि आप इस मुल्क की मिलाक को, इस मुल्क के इदारों को आप नुकसान पहुंचाएं। यही एक मनफी सोच अनफॉर्चुनेटली प्रिवेल कर रही थी, जिस पे हुकूमत ने एक्शन लिया, मैं समझता हूं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आज इस तकरीब में हम उन लोगों को भी, जिन लोगों ने उस मुश्किल में दहशतगर्दों की मौजूदगी में बसेस को बचा के निकले, उनको भी हम यहाँ पे सनतें देंगे। तो मैंने कहा यही आप लोगों से इंपॉर्टेंट बातें करनी थी। अब मेरी उम्मीद होगी कि इस ऐप को तमाम लोग अपने अपने मोबाइल में सेव कर लें। जो जो बसेस में सफ़र करते हैं, इस ऐप को आप सेव करें ताकि आप इस ऐप से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। थैंक यू वेरी मच। हाँ बोलो। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने फिर आप मीडिया टॉक करना। ये पहले मीडिया टॉक कर मीडिया टॉक। अच्छा शेरजील साहब, ई बसों का एक मसला है, पहले निशानदेही करवाई थी, चार्जिंग का एक बड़ा इशू है। अगर ये मसला हल नहीं हुआ, ये ईवी बसें तो आपकी बैठ जाएंगी, क्या करेंगे इसका? देखिए जी, इंशाल्लाह कोई भी बस को बैठने नहीं देंगे। ये नए नए तजुर्बे डेफिनेटली हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। मैंने कहा कि पहले भी कभी भी ईवी बस पाकिस्तान में नहीं आई। हम पहले थे जो इन्होंने ये सर्दी शुरू की है। चार्जर्स का इशू है हमारे पास। आपको पता है कि यहाँ पे पावर की जो फ्लक्चुएशन है के इलेक्ट्रिक की, के वोल्टेज कम आना और ज़्यादा आना, उसकी वजह से हमारे चार्जर्स का कोई प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन मेरे साथ बैठे हुए हैं बस ऑपरेटर्स, उन्होंने कहा है कि 27 तारीख को हमारे चार्जर्स जो हैं वहाँ 27 तारीख को फ्लाई करेंगे। तो बाय एयर मंगवाए हमने, इसीलिए हमने कहा कि जी कि अगर वो कार्गो के ज़रिए मंगाते तो ज़्यादा टाइम लगता, शिप के ज़रिए, तो बाय एयर मंगाया गया है ताकि वो 27 तारीख को वो सारे आ जाएं और हम उसको दोबारा चला सकें। अच्छा शर्जील साहब, कराची शहर में बसेज माशाल्लाह एक अच्छा इक़दाम है आपका, लेकिन आपने खुद ही जो वीडियो चलाई उसमें आपने देखा कि बहुत ज़्यादा तादाद है लोगों की जो खड़े हैं, और इसकी तादाद बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और इसके साथ साथ कोई ऐसी ऐप भी होगी कि जब जैसे ईद आ रही है और ट्रांसपोर्टर मनमाने किराए लेते हैं, लोगों को लूटते हैं, अगर किसी को कोई शिकायत हो, किसी ज़्यादा किराया लिया गया हो, तो वो ऐप के ज़रिए आपको इन्फॉर्म करे? बिल्कुल जी, देखिए दो किस्म की है ना। ये ऐप है जो कि हमारी पीपल्स बस सर्विस और जितनी भी हमारी नई टेक्नोलॉजी बसेज हैं BRTs को कर रही है टैकल। जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर डेफिनेटली उसमें ये कैमरा, उसमें सिस्टम, उस पर ऐप नहीं चल रही है, क्योंकि मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स हैं। लास्ट ईद में ये भी पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि हमने अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को मुतहरिक किया, मोटरवे पुलिस के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ। ईद के सीज़न में उन्होंने मुख्तलिफ बसेस में वो लोगों बसें रुकी। मेरे पास सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। वो बसेस में अंदर गए, लोगों से पूछा जी कितना किराया लिया गया है, चेंज से ज़्यादा लिया गया। एक एक बस से, उन ड्राइवरों से और कंडक्टर से 1-1 लाख रुपए हमने वापस लेकर उन पैसेंजर्स को दिए हैं कि जी आपसे ये ज़्यादा किराया लिया गया, आप किराया वापस करें। ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा हुआ है कि उन मुनाफाखोरों से पैसे लेकर उन पैसेंजर्स को वापस लौटाए गए हों उसी सफ़र के दौरान। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी ईद सर पर है। हमारी कोशिश ये होगी कि कहीं पे ये हमारी टीम्स दोबारा मुतहरिक हों और कहीं पे भी किसी को जो है इस तरीके से ज़्यादा किराया या मुनाफाखोरी की इजाज़त ना दी जाए। ये बता दीजिएगा कि आपने फिक्स बस सर्विस शुरू की है, बहुत अच्छी सर्विस है, लेकिन उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो खवातीन कंडक्टर्स हैं उनके लिए वॉशरूम कहीं नहीं है। अगर टावर पे अगर वो 2 घंटे या 1 घंटा खड़ी रहे तो वो जाके मस्जिदों में जाते हैं। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं? देखिए हमारे जितने भी डेपोज हैं वहाँ पे मौजूद हैं और मजीद जहाँ पे शिकायत होंगी उसको भी हम करेंगे हल। अच्छा शर्जील साहब ये बताइएगा, यार खवातीन को भी मौका दे देता बंदा। शर्जील साहब ये बताइएगा, आपके बसेस तो आ गई हैं, सिंध गवर्नमेंट ने, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आप नहीं समझते कि ड्राइवर्स की तरबियत होनी चाहिए? क्योंकि घरों पे इतनी जोर से जो है वो उड़ा के लेके जा रहे हैं किस्म से 7C की तरह। तो देखिए जी, उसी के लिए हमने कहा है कि अब ये जो नई ऐप आ गई, उस ऐप में ये सहूलत मौजूद है। अगर जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ड्राइवर इज़ नॉट ड्राइविंग सेफली या वो कहीं बेहतियाती कर रहा है, तो आप इमीडिएटली उसकी तस्वीर निकाल के आप ऐप में भेज दें। शर्जील साहब, ये ईद आ रही है, ईद पे हर दफा जैसे आप देखा ट्रांसपोर्ट लोगों को लूटते हैं,
तो बड़े शहरों में तो आपने ये सहूलत दे दी है, लेकिन कराची से हैदराबाद या कराची से दादू लाड़काना तक ये सर्विस आप क्यों शुरू नहीं करते? लोगों की जान छुड़ा दें ट्रांसपोर्ट। देखिए जी, आपकी बात सही है। हम ये भी नहीं चाहते कि हर काम हुकूमत करे तो लोगों का रोजगार मुतासर हो। शहरों के अंदर तो हमारा जो प्रायोरिटी है कि शहरों के अंदर जो है वो सर्विस गवर्नमेंट यूज़ करे, लेकिन शहरों के बाहर फिलहाल प्राइवेट लोग कर रहे हैं, उनको करने दें। किरायों के लिए हमने कहा कि हमने लास्ट ईद में जिस तरह मैकेनिज्म बनाया था वही बनाएंगे कि किराया ज़्यादा ना ले सके। शकील साहब ये बताएं कि या काज साहब के पास खालफिन ये कह रहे हैं, अरे भाई पूरा मिनट अच्छा शरीफ साहब ये बता दें कि बसों का जो भाई एक रूट है मिनट वो अरे चरिया मुझे मारवा भाई बात सुनो। बात ये कि 15 साल से यहाँ पर 15 साल से यहाँ पर आपकी हुकूमत है, आपने जो मंसूबे बनाए तो मुखालफिन कह रहे हैं आपने कौन सा तीर मारा। 15 साल भी तो हुकूमत आपने की है, 15 साल के बाद एक बस लाकर आपने आवाम को क्या गिफ्ट किया? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इन पिछले 15 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की सिंध हुकूमत ने सिंध भर में लोगों के लिए बहुत कुछ काम किया है। जो आपका सबसे बड़ा इनकलाबी सेक्टर है वो है हेल्थ सेक्टर। पूरे पाकिस्तान में वाहिद शहर है कराची जहाँ पर बेस्ट मेडिकल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसमें आप NICVD देख लें, आप साइबर नाइफ देख लें, आप इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल देख लें, आप गंबट में जो हमारे सिंध में है गंबट में देख लें, जिस तरह आप लिवर और लंग्स दोनों का ट्रांसप्लांट हो रहा है। ये पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हो रही चीज़ें। तो हेल्थ सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द बेस्ट, और इसको हम ओपन डिबेट पे भी छोड़ते हैं। कोई किसी के पास बेस्ट और चीज़ें तो हमें बताए, और इसी से हम पूरे पाकिस्तान के लोग इलाज कराने आपके पास आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये नहीं उसमें कोई नहीं रख रहे कि आप अगर किसी और शहर से आ रहे हैं, किसी और सूबे से आ रहे हैं, नहीं, पूरे पाकिस्तान से। और कहीं कहीं पे आपके साइबर नाइफ में तो लोग अफगानिस्तान और ईरान से भी पेशेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं जो आपके पास फ्री इलाज करवाने आ रहे हैं, जिसके 60-60 हज़ार डॉलर जो हैं वो लिए जाते हैं। तो इस तरीके से रोड सेक्टर पे काम हो रहा है। कराची का कचरा हमेशा मशहूर था कि कराची में कचरा बहुत नज़र आता है। जिस तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रही है वो दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब। चीज़ें उठ रही हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और वो जो कंसिस्टेंसी है उससे ही चीज़ों को मज़ीद बेहतर होने का मौका मिल रहा है। काजी साहब ट्रांसपोर्ट का ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बसों का एक बड़ा मसला काफ़ी हद तक हल हो रहा है, लेकिन सर्कुलर रेलवे भी इसी शहर में एग्जिस्ट करती है, तो सिर्फ गवर्नमेंट इसके लिए क्या करी? और दूसरी बात ये कि सियासी सवाल है कि PDM में जो शामिल जमात हैं उनको आपने 2010 इलेक्शन की तरफ फेस किया, वो शायद इलेक्शन में जाने नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपने उनको इलेक्शन में फेस किया, तो आपके लिए साझदार मौत था या उनको किस तरह था? नहीं, तो जो पहली आपने बात की सर्कुलर रेलवे, ये भी जी जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, चीफ मिनिस्टर सिंध कहते रहे कि सर्कुलर रेलवे को प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं किया। जैसे शहबाज शरीफ साहब आए तो सैयद मुराद अली शाह साहब ने उनसे कहा कि जी सर्कुलर रेलवे को बराए मेहरबानी CPEC का हिस्सा बनाया जाए, जिसमें उन्होंने हामी भरी, और अब उसकी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। फेडरल गवर्नमेंट क्योंकि ज़्यादा देखता है इस चीज़ को, टॉपिक इस सब्जेक्ट को, और सिंध गवर्नमेंट को कहा गया कि ये हमने ये कहा कि ये एक तो CPEC का हिस्सा बनाए और ये प्रोजेक्ट पूरा दे दें सिंध गवर्नमेंट को, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट राज़ी हो गई है। अब डेफिनेटली आगे इस चीज़ को बढ़ाया गया है, काफ़ी इसका ट्रैक भी खाली किया गया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली भी उसकी मीटिंग रखी थी KCR की। तो ये अगर कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट हो गया तो मैं समझता हूँ कराची का 90% मसला जो है वो हल हो जाएगा, और बहुत उम्मीद नज़र आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसमें बढ़ चढ़ कर कोशिश कर रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं डेफिनेटली उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट की ओनरशिप लेने के लिए वो तैयार बैठे सर, इसी के तसलसल इसमें ये बता सकते हैं कि इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कब तक बन जाएगा? आप लोगों के जहन में क्या टाइमलाइन है कि इंटीग्रेटेड, जिसमें KCR भी है, BRTs भी हैं? देखिए जी, मैंने आपको बताया ना, आपने शायद मेरी बात सुनी नहीं, कि फीडर रूट्स इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS हमारा लॉन्च हो चुका है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया है अपनी BRTs के साथ भी। जो हमारी मजीद 2 BRTs बन रही हैं, रेड लाइन और येलो लाइन, वो जब तैयार होंगी वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी। तो ये मैं समझता हूँ कि कराची के लिए जो कराची का मेन मसला था ना, इससे आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपके जो आवाम है उसको कम पैसों में अच्छा सफ़र मिल रहा है, इसमें जो आपकी ट्रैफिक की कंजेशन है शहर की, उस पर लोड कम होगा, लेकिन कोई टाइमलाइन उस पर लोड कम होगा। कोई टाइमलाइन के अब तक प्रोजेक्ट चल रहे हैं सारे। मेमन साहब, अभी आपने कहा अपनी तकरीर के अंदर के जो है मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पर आए, साथगर माहौल है, और आके यहाँ पर काम करें, अपने यूनिट लगाएं। सर, इतलात उसी तरह की आ रही है कि शेल और जो सुजुकी जो है वो अपना कारोबार यहाँ से निपट के जाना चाह रही है, इस पर आप क्या कहेंगे?
लेकिन मैंने आज अपनी जो यहाँ पे बात की उसमें हमने एक बात नोट की कि मैंने इकोनॉमिक इश्यूज पे बात की कि अब वो वक्त मेरे ख्याल से हमारे पीक पर है कि हम सारी प्रायोरिटीज़ को छोड़कर, सारी लड़ाई झगड़ों को छोड़कर, सारे फसादों को छोड़कर और जो ज़ाती अना को छोड़कर हम मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करें, उसके लिए अपने पैरों पे खड़े हों, किसी के मोहताज ना हों। और ये आज दिन तक पाकिस्तान में इस तरीके की अगर सहूलियत किसी ने दी है या इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया था, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जी हमें किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने पैरों पे किस तरह खड़े होकर अपने मुल्क को आगे लेकर चलें। और मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। इस वक्त पाकिस्तान में और कोई मसला नहीं है, जितने इशूज़ हैं वो सारे पैटी इशूज़ हैं। अगर कोई चीज़ इस वक्त पाकिस्तान में इंपॉर्टेंस रखता है तो आपके मुआशी इशू रखता है, आपकी मईशत रखती है। उसके लिए मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, जिस तरह आपने कहा कि कुछ कंपनीज जा रही हैं, एक फैक्ट्री, ये तो आपने बड़े बड़े कंपनीज ले ली ना, एक छोटा भी कोई बिजनेसमैन, मतलब एक बंदा एक अपनी फैक्ट्री बंद करता है तो कितने सैकड़ों हज़ारों लोग जो है बेरोज़गार होते हैं, और उन हज़ारों लोगों के पीछे ख़ानदान कितने बेरोज़गार होते हैं। तो हमें अभी सारी प्रायोरिटियाँ रखनी चाहिए कि हम अपने मुल्क को में किस तरीके से इसको आगे लेकर चलें और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं, हम शॉर्ट टर्म पॉलिसी ना बनाएं। पॉलिसी ये बनेगी कि कम से कम 10 साल की इकोनॉमिक पॉलिसी हो, सब अग्री करें और जो भी हुकूमत आए उसमें क्रेडिट कोई ना ले कि ठीक है यार ये मेरा प्रोजेक्ट था या उसका था। जो भी हुकूमत है वो उस प्रोजेक्ट को ओनरशिप दे और उस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चले। ये नहीं हो जिस तरह माजी में होते रहे कि जी एक गवर्नमेंट है उसने एक प्रोजेक्ट चलाया, दूसरी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसने कहा यार ये तो फलाने लीडर ने अनाउंस की थी तो अब उसको बंद कर दिया। पता चले कल को खुदा न खासा कोई और यहाँ पे बैठा हो, किसी और पार्टी की हुकूमत बोले जी ये ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद कर दो क्योंकि ये तो पीपुल्स पार्टी लेके आई थी। नहीं है ये पब्लिक के पैसों की चीज़ें पब्लिक के लिए हैं। NICVD पब्लिक के पैसों की चीज़ें पब्लिक के लिए आई है। तो इस तरीके से माजी में जिस तरह PTI वालों ने NICVD को बंद करने के चक्कर में भी थे ये लोग, जिसके आज दिन तक हम बात करें 46 चेस्ट पेन यूनिट पूरे सिंध भर के मुख्तलिफ जिला में मौजूद हैं, वो NICVD को बंद करने के चक्कर में भी थे। तो ये पॉलिसी अब खत्म होनी चाहिए, हमें पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देखिए जी, मैंने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब बैठे हुए हैं, इनको बाय सर्कुलर भी हम कह चुके हैं कि जहाँ पे इलीगल बसों के अड्डे चल रहे हैं वो सारे ख़त्म किए जाएं, बंद किए जाएं, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जो भी इस तरह काम कर रहे हैं। जी साहब, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि क्या वजह है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो बसों के इंटरसिटी बसेस के अड्डे नहीं है शहर में, बहुत से प्राइवेट अड्डे हैं लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में कोई एक भी अड्डा नहीं है। यूसुफ बोर्ड के नहीं, हमारे बस स्टॉप्स हैं, हमारे बस स्टॉप्स हैं जहाँ पर जो है टर्मिनल्स की बात करें। नहीं, बस स्टॉप्स भी हैं। अब हमारे जो है वो जो जहाँ पे बस खड़ी होती हैं हमारी टर्मिनल्स की बात करें वो भी मौजूद है, यूपी मोड़ पे भी मौजूद है और अभी हमारे नए भी हम लोग जो है वो करने जा रहे हैं। देखिए जैसे हमारी बसेस बढ़ती जाएंगी फिर हम पुरानी बसेस बंद करेंगे, मैंने पहले भी कह चुका हूँ। थैंक यू। Sir, I request you to please stay on stage for certificate distribution to those who saved buses in 9th May and beyond. Thank you. जी, 9 मई का जो अफसोसनाक वाक़या है जिसमें कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, उसी में कुछ हीरोज़ ऐसे थे जिन्होंने इस पीपल बस सर्विस को महफूज बनाया और कम से कम नुकसान होने दिया। ऐसे जितने भी लोग थे जिन्होंने उसमें अपनी सर्विसेज अंजाम दी और कोशिश की कि इस पब्लिक के एहसासे को, इस पब्लिक के सरमाए को वो महफूज बनाएं, आज उनको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स यहाँ पे दिए जाएंगे और जनाब शर्जील अनाम मेमन साहब के हाथों से वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट होंगे। Also, I would like to call Brigadier Alam Tar, Gul Hassan, Secretary Transport, City Transport, MD SMTA Kamal Hakim and Soeb Shakir. Thank you. Now, I would like to call upon stage Mr. Mukhtar Ali.
मिस्टर मुख्तियार अली, मिस्टर हाकिम अली। इनके लिए तालियां आप लोगों की होनी चाहिए। ये वो हीरोज हैं जिन्होंने आपके सरमाए से बनी हुई ट्रांसपोर्ट को आपके लिए महफूज बनाया है। मिस्टर सलमान जाफर, मिस्टर सलमान जाफर, मिस्टर सुहेब शफीक, मिस्टर सुहेब शफीक, मिस्टर अब्दुल शकूर, मिस्टर नासिर हुसैन, मिस्टर नसीर हुसैन, मिस्टर नसीर हुसैन, मोहम्मद हशाम, मोहम्मद हशाम, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद मुस्तकीमुद्दीन, Can we please give them a big round of applause? Abdul Samad, Mr. Abdul Samad, Mr. Ramiz, Mr. Saqib Rasool, and we have another Abdul Shakur, Mr. Abdul Shakur. Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोगों को ये सर्टिफिकेट दिया गया है, एक ज़रा ज़ोरदार तालियां इन सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि 9 मई एक बड़ा ख़तरनाक दिन था।